ڈاکٹر حافظ صابر پاشا صاحب دعوت برکاتہم ایک شعر بتا دوں. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ بو، اسی کے ساتھ سے ہے اقبال سورہ نساء کو اس اپنے شعر میں موجود صنف نازک کی بلبوتے پر ہے. اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے، اسے نظر بد سے بچائے. لیکن جو موضوع تھے میری زندگی کا مرکز و مقام کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. بدعت و خرافات اور غلط رسومات سے اجتناب کروں گی. میں سب کی پابندی کروں گی. میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی. میں میرے بچوں کی تربیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کروں گی. میں میرے مسائل کو لے کر شرعی عدالتوں میں حاضر ہوں گی. میں اپنے آپسی جھگڑوں اور گھریلو مسائلوں کے لیے علماء کرام سے رجوع ہوں گی. اگر حکومت کی یا کسی اور کی جانب سے ہماری شریعت میں مداخلت کی جائے تو میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گی. اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد پر پابند رہنے کی کوشش کروں گی. جزاک اللہ. ویسے مولانا مفتی مستان علی صاحب ایک ترقیاتی شخصیت ہے. ہمیشہ مختلف موضوعات کے ذریعے دختران امت کی رہنمائی کے لیے اچھی کوشش اور محنتوں کے ذریعے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ان کے کاروبار میں ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں ترقی و وسعت دے اور ان کے تمام معاملات کو اللہ بہتر کر دے. کیونکہ ایک عرصے دراز سے خواتین کی خدمت کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور ہر شعبے حیات میں ہم کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی بھی اسلام کی تائید میں یا مسلمانوں کی تائید یا شریعت کی تائید میں کبھی نہیں گئے. مختلف بہانوں کے ذریعے ہماری شریعت میں تبدیلی کو کوشش کرنا چاہتے ہیں اور وہ شریعت جو کتاب سنت پر مشتمل ہے. قرآن کریم ہمارا ضابط حیات ہے اور وہ قرآن جو صدیوں پہلے جس کا نزول ہوا وہ قرآن آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکتران ملت اسلامی و اقامتی یونیورسٹی جامعۃ المومنہ حیدرآباد کے زیر اہتمام آج بتاریخ 4 فروری 2018 عیسوی ایک کانفرنس بعنوان اللہ کے ثلاثہ اصلاح معاشرہ برائے خواتین کا انعقاد اردو مسجد خلوت حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ میں عمل میں آیا. اطلاع کانفرنس علماء کرام، دانشوران و ریسرچ اسکالر، مرد و خواتین کا یہ احساس ہے کہ شریعت اسلامی مقدس ابدی و قدرتی قانون ہے. اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار مخلوق خدا کو نہیں ہے. یہ ادارہ اور شرکائے کانفرنس ملک کی عظیم عدالت العظمیٰ کا احترام کرتی ہے اور یہ محسوس کرتی ہے
मुजवजा कानून साबित अदालत उलमा के ऐन हैसियत के मुताबिक नहीं है और इस बात की शदीद जरूरत है कि हुकूमत हिंद बिल्कुल इस मंजूरी से दस्तबरदार हो जाए और हुकूमत हिंद को चाहिए वो उलमा दीन के सवाल मशवरा करें और ऐसा कानून बनाएं जो उलमा दीन और इस मुल्क के मुसलमान मर्द और ख़वातीन को काबिल कबूल हो। ये कॉन्फ्रेंस उम्मत मुसलमान से पुरजोर ज़ाहिर करता है कि हुकूमत का काम कानून साबित करना है। अगर हुकूमत ही इसी अंदाज में जो कानून साबित करती है तो सारे मुल्क के मुसलमान बिलखुसूस ख़वातीन दीन को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत जो कानून साबित करती है तो सारे मुल्क के मुसलमान बिलखुसूस ख़वातीन इस दिन को मुस्तरद करते हैं और शरीयत पर अमल करने का मुकम्मल अहद करते हैं। हालात में जो तंजीमें और जो जमातें इस दिन को सेलेक्ट कमेटी से रिव्यू करने का मुतालबा करी है और करती है तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस मुस्लिम पसंदा बोल से बदूर ख्वाहिश करता है कि अगर ये दिन कामयाब हो जाए तो इस दिन की खालिफत में अदालत से रुजू हो ताकि मौजूदा हुकूमत की इन कोशिशों को नाकाम बनाए और माशरे में शऊर बेदारी और शरीयत की खूबियों को उजागर करने के लिए पूरे मुल्क में ऐसी मुहिम की तारीफ का ऐलान करते हैं। करता हूँ कि मैं नारे तकबीर करता हूँ और आप नारे तकबीर में इस करार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टराने मिल्लत की अजीम दीनी दानिशगाह, जहाँ पर इस्लाम के तालिबात और इस्लाम के ख़वातीन को दीन के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है, मेरी मुराद जामिया मुग़लपुरा हैदराबाद है। उसके ज़ेर एहतमाम आज एक अज़ीमुश्शान तलाक़ सलासा और इस्लाह माशरा पर एक कॉन्फ्रेंस उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक में मुनाक़िद की गई है। तकरीबन लगभग 3000 से ज़ायद ख़वातीन व तालिबात ने इसमें शिरकत की है और जिन मेहमान ख़ुसूसी को हमने दावत दी है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम इसमें शिरकत की है और अपने खिताबात से इस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद करने का हमारा यही मुद्दा और यही गर्ज़ है कि ख़वातीन में दीनी शऊर को बेदार किया जाए। अगर हम हमारी ख़वातीन में दीनी तौर को बेदार करते हैं तो यकीनन ये खातून तालीम याफ्ता होती है या ये खातून तरबियत पाती है तो ये ख़ानदान को तालीम याफ्ता या तरबियत याफ्ता करने के मुमासिल है। इसी के गर्ज़ के पेश नज़र 1991 में मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुस्तान अली क़ादरी साहब ने इस जामिया की दाव बेल डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह पूर्ण जिगर से उसको सैराब कर रहे हैं और इस्लाम के जो ख़वातीन हैं उनको दीनी तालीम के ज़ेवर से और उनकी तरबियत कर रहे हैं और उनकी अखलाकियात को बेहतर बनाने के लिए हर जगह, हर मोहल्लात में, हर शहर में और हर देहात में और हर रियासत में इस तालीमी परवान को चढ़ाने के लिए उन्होंने कमर बस्ता होकर अपने फारिगात को, मौलिमात को, मुफ्तियात को, हुफ़ाज़ कराम को और खारियात को इस दीन तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के गर्ज़ से इज्तिमा मुनाक़िद करते हैं। और इस इज्तिमा का मुनाक़िद करने का भी हमारा यही मुद्दा है कि ख़वातीन में दीनी शऊर को बेदार कर दें। जब ख़वातीन दीनी शऊर को बेदार हो जाती हैं तो अपने आप पर समझ जाती हैं और शरीयत को पहचान सकती हैं और अपनी जो बुनियादी जो हुकूक़ है उसको जान सकती हैं। इसी के पेश नज़र ये कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ये जारी व सारी है और आप भी दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस सही को, इस कोशिश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और मज़ीद और इस तरह की कॉन्फ्रेंस दूसरे हज़रात भी करें ताकि ख़वातीन में दीनी शौक़ बेदार हो सके। जहाँ पर भी हो सकते हैं, जिस जगह भी आप उसको एहतमाम कर सकते हैं, करें। ये इंदल्लाह, अल्लाह के पास इसका ज़रूर अजर आपको मिलेगा।